So in this way, this carbon with the 4 bonds, that will be the tetravalent structure, will be the dash structure. This type of structure is called as dash structure, whereas this one is called as Lewis a dot structure. Okay. Don't worry Yashasvi, this will be in recording now. You will get it. अभी ये recording mode में भी डाल दिया है मैंने. Don't worry. अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम भी होती है तो मेरा रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होता है. Don't worry. ठीक है. Yes, sir. So how the carbon? This is your carbon with 4 electrons in the outermost shell, and there are 4 hydrogen atoms with 1 electron each. And by sharing of these 4 electrons with the hydrogen, this one is what? A dot structure. Whereas this one is a dash structure. Both are known as Lewis dot and dash structures. डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन किसके कितने शेयर हो रहे ये दिखता है, जबकि डैश में which bonds are there or the bonds are present in which items, all that is shown in Lewis dot and dash structures. Now once we have that formation of covalent bond is due to sharing of electron. Now if I have the another carbon, then this will have the 4 electron, this carbon will have also the 4 electrons. Right? Each of the carbon having 4 electrons in the outermost shell. And now I use 1 hydrogen here, 1 more. Then, yes, dot is electron of hydrogen. जबकि cross जो है, that is electron of hydrogen dot और एक क्रॉस कार्बन के लिए. Now if this carbon if you go for this carbon, then you will find that how many electrons are there? 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8. In this way 8 electrons are there, right? Similarly, if you go for this another carbon, then this will have again 4 electrons, 4 plus 4 8. Now each of the carbon complete its duplet, whereas hydrogen complete its duplet and carbon completes the octet. Now if you go for this is your 1 bond, this will be 1 bond, another bond on upper side, एक down side में एक carbon bond बन गया. Now this is your bond that exists between 2 atoms of carbon. यहाँ पे 2 कार्बन आइटम के बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया है. एंड नाउ ईच ऑफ द कार्बन विल हैव द वैलेंसी 4. सो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम एक दूसरे को हमने लिंक कर दिया. इफ यू गो फॉर द नेक्स्ट कार्बन, देन लाइक दिस. अगेन इफ यू गो फॉर 1 मोर कार्बन, देन so in this case you will find that each carbon can form 4 covalent bonds. One thing. Second thing, number of carbon atoms can be linked together to form long chains. Carbon has a unique property to form a long chain by self-linking of atoms of same element, that is carbon. Carbon can link to the large number of atoms to form a long chains. And this property is known as Catenation. Okay, this one is known as a catenation. Now these are the 2 things that carbon is unique from all other elements. First thing is that it is a tetravalent, and second thing is that it has a unique property of catenation by which it can form a long chains. Large number of atoms can be linked together to form a long chains. So due to these 2 properties, this carbon can form इनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड इस कार्बन के बन सकते हैं. उसमें से मैं 2-3 ही बना के दिखाया आपको. दिस इज व्हाट अ कार्बन सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे हम 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कर रहे थे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड सच कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर कॉल्ड एज Hydrocarbons. ओके, हाइड्रोकार्बन्स. Sir, हाँ, there are Yes.
Aren't there any more elements whose valence is 4? Yeah, this one silicon, but this is not a carbon, but it is placed below the carbon. पीरियोडिक टेबल में हम यदि चलते हैं तो you'll find that कार्बन के नीचे ये एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 4 है, and it has also similar type of property. Large number of silicon atoms can be linked together to form a network. लेकिन यहाँ दूसरा एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे हम खास तौर से सिलिकॉन का ही नेटवर्क स्टडी करते हैं. Large number of silicon atoms are there. Each atom can form how many bonds? 4. How many bonds? Only 4 bonds. This is another element that has a property of, but this element doesn't have any large number of compound like that of carbon. जितने कार्बन के कंपाउंड है ना उतने इसके नहीं है. एक बात. दूसरी बात, नेचर में दो ही चीजें है, एक तो मिट्टी है और दूसरा रॉक्स है. ठीक है, रॉक या मिट्टी या सैंड की बात करते तो दिस इज द कंपोजिशन सिलिका SiO2. इसी से आपका मिट्टी सॉइल भी बनता है, इसी से पत्थर बनते हैं, इसी से रॉक्स बनते हैं. ठीक है. दूसरा है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन. नाउ दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स, दैट मे बी प्लांट और दैट मे बी एनिमल्स. मतलब नेचर का कंपोजिशन यदि आप स्टडी करेंगे तो उसमें दो ही एलिमेंट आपको मेन मिलेंगे, एक तो ये और दूसरा ये. कार्बन कहां मिलेंगे हमको? ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स, दैट मे बी एनिमल्स और द प्लांट्स, यू विल फाइंड दैट कार्बन इज देयर एवरीवेयर. कार्बन इज देयर. सवेरे से शाम तक आप जितना मतलब करेंगे एक्टिविटीज, उन सब में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है. दूसरा होता है सिलिकॉन. ये एक एलिमेंट है जिसका आपका, इसका सिलिका बोल दिया आपने, सैंड बोल दिया, रॉक बोल दिया, सॉइल बोल दिया, तो उसमें कंपोजिशन में मेजर कौन होता है? तो सिलिकॉन इज देयर. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिस मीडियम से हम आप अभी जुड़े हुए हैं, उन सब का बेसिक एलिमेंट कौन सा है? तो वो सिलिकॉन है, दैट इज योर सेमीकंडक्टर. कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी हो, उसके अंदर सिलिकॉन का यूज होता ही है, दैट इज सेमीकंडक्टर. ये सभी मोबाइल से लेके ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन डिवाइस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, उसके अंदर सिलिकॉन का मेन रोल होता है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं किसी भी टाइप का, तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है सेल. सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन containing compounds. Again carbon is there. Any kind of food material, if you consider any kind of food material, that may be carbohydrate, that may be protein, that may be fats, that may be enzymes, that may be nucleic acids, that may be composition of DNA. Everywhere there is a carbon. Everywhere there is a carbon. So this carbon is very important because it can form very variety of compounds, enormous number of compounds, and that requires a separate branch known as organic chemistry. इतना ज्यादा है इसके कंपाउंड्स, इतना ज्यादा यूटिलिटी है इन कंपाउंड्स का कि इसके लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच कर दिया केमिस्ट्री का, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. Yes, So you sir. got this one? Okay. Compounds containing carbon and hydrogen only. These are the hydrocarbons. Okay. दूसरी बात, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं those having straight chains of carbon atoms which may have the side chain, right? Hydrocarbon with a straight chain of carbon atoms. Which may have the side chains,
all they are called as aliphatic, means straight chain wala. Example, see here, this is a long chain of carbon atoms. This is a straight one. This one, it has a branch और साइड चेन. इसके अंदर कार्बन चेन है, उसी में साइड चेन भी लगा हुआ है, ब्रांच भी आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एलिफेटिक वो होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स इज देयर. अभी एलिफेटिक में भी एक चीज और देखना बाकी है हमको. सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज हैविंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विथ अभी जो चेन निकाला था मैं, उसमें सब जगह पे दो कार्बन के बीच में हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बताया था, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज saturated hydrocarbon containing carbon carbon single bond. They are called as saturated hydrocarbon. इसी को आपने दूसरा नाम दे दिया, एक ही है, अल्केन. ये वो कंपाउंड है जिसमें जितने कार्बन होंगे उसका डबल प्लस टू, जितना कार्बन उसका डबल प्लस टू हाइड्रोजन शुड बी देयर. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स having n number of carbon atoms and twice n plus 2 number of hydrogen atoms, they are called as alkane. They are characterized by carbon carbon single bond. Now in compounds के जब हम नाम रखेंगे तो उस नाम में at the end you will find that this will be there, ANE. इनके जब नाम रखेंगे ना हम, अभी पर्टिकुलर, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया. बाय दिस यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला. सो इफ यू हैव एंडिंग वर्ड इज ANE मींस दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो दे दिया हमने उसको, जितना कार्बन उसका डबल प्लस टू हाइड्रोजन. तो अब यहां से क्या हटा दूं मैं सब? यस सर. ओके. अब एक कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है ऐसे भी नहीं है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स आल्सो. सी हियर कार्बन, these are the two electrons and these are the two electrons. This is your another carbon. If you share these two electrons with this carbon, यहाँ पे हमने एक एक हाइड्रोजन खड़ा कर दिया on this side और एक एक हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट तो पूरा दिखता है, but at the same time you will find that carbon is sharing its two electron with the neighboring carbon. ये कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन के साथ शेयर कर रहा है. So this is the sharing of two pairs of electrons. एक पेयर ये है आपका, that will give you the single covalent bond. Then another pair is there that will give you the second bond. Right? This is your carbon carbon double bond. Multiple bond आ गया. Now इधर की साइड में आपका एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बन गया, दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ, तीसरा ये वाला. Now such a compounds containing either double or triple bond. अभी तो मैंने सिर्फ दो कप शेयरिंग किया, दो इसके साथ इसने शेयर कर लिया, इसका डबल बॉन्ड हो गया. Now this is what type of compound that is unsaturated. If you go for the sharing of three pairs of electron among themselves, दिस इज कार्बन, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कार्बन, ये उसका तीन इलेक्ट्रॉन, एक चौथा इधर से खड़ा कर दिया आपने. ये तो ठीक है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डुप्लेट पूरा हो गया. ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डुप्लेट पूरा हो गया. एक दो तीन, कितने बॉन्ड बनने चाहिए? तीन. इधर में एक, इधर में एक. सो दिस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. दिस वन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में क्या होता है? देयर इज अ शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द टू एटम्स. ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमंग द कंबाइनिंग एटम्स. ऐसे नाइट्रोजन में भी होता है. नाइट्रोजन, सी हियर, नाइट्रोजन इज 2,5, राइट?
Last shell contains 5. Okay. Here is another nitrogen. इसलिए अलग निकाले मैंने, उसके 5 इलेक्ट्रॉन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन. नाउ इट विल शेयर 3 octet पूरा. Now this will share another 3. Now you will find that these two, 1 2 3. So this is again carbon carbon triple bond. This one ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एन ट्रिपल बॉन्ड. ऑक्सीजन में जाते हैं हम तो कैसे होगा? लास्ट टाइम आई हैड सेंड यू द मटेरियल, राइट? 2,4 होता है. यस. ऑक्सीजन हाउ दैट इज 6. 2,6. ये 6 इसके हो गए, राइट? और ये 6 इसके हो गए. लास्ट शेल में कितना है ऑक्सीजन का? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इसके पास में, 6 उसके पास में. कितने का जरूरत है शेयरिंग के लिए? 2 का. 2 लेने से क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. नाउ यू हैव दिस ओ डबल बॉन्ड. 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड रहने चाहिए? 2. 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3. लास्ट टाइम जो मटेरियल मैं सेंड किया था आई थिंक उसमें भी इसी तरह से कुछ तो भी था इनिशियल पेजेस पे, राइट? Have you gone through that pages, right? So here is a multiple bond between 2 carbon atoms. ये तो मैं सेकेंडरी चीज है, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, we don't have any need to go through that. बट हम जा रहे हैं वो रास्ते से तो पकड लिए उसको भी चलते चलते, ठीक है ना? घरच्यांनी आंबे सांगितले म्हणजे फक्त एकाच कॅटेगरीचे नेले पाहिजे असं नाही ना, दुसरे भेटले दुसरे पण घेऊन जायचे. Okay, now such type of compounds in which there is a multiple bond, means either double or triple bond between 2 combining atoms, then such compounds are called as unsaturated compound. Means all valencies are not satisfied by the single bond. All valencies are not satisfied by the single bond, and in that case they will be called as unsaturated compounds. Okay. So next one is, do you know all these things? Yes, sir. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक तक सब पता है आपको? एलिफेटिक नहीं मालूम था. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नोट्स पे दिया था. ओके ओके, ठीक है. नाउ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल or triple bond. They are called as unsaturated hydrocarbons. They are also the aliphatic one. ये भी aliphatic है. They have the straight chain. So here, double bonded compound देखते हैं हम. See what is the change? Alkene is an unsaturated hydrocarbon in which less number of hydrogen atoms will be there. So they have the n number of carbon atoms, then double number of hydrogen atoms will be there, and their ending word is ENE. Characterized by what type of characteristics should be there? Carbon carbon double bond should be there, then that will be ENE. नाम में उसके ENE दिखता है तो समझ जाना कि उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. ओके. ये सारे वर्ड हमारे बोलने में आते हैं. जब हम थोड़ा सा ऊपर का पढ़ने जाते हैं तो ये सारे वर्ड हमारे बोलने में आते हैं. डे टू डेज बिल्कुल ऐसे कॉमनली बोल के चले जाते हैं. तो उनका मीनिंग यदि हमको सही ढंग से पता है तो वी कैन गो थ्रू दैट. वी कैन हैंडल सच वर्ड्स वेरी केयरफुली. ओके, द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल्स में. See what is the difference? ANE carbon carbon single bond, ENE carbon carbon double bond, YNE triple bond. Now the formula is less number of hydrogen atoms will be there. Still less number of hydrogen atoms will be there, that is twice n minus 2. जितना कार्बन उसका डबल minus 2. And they are characterized by, जब नाम में आपको ये चीज दिखता है किसी के YNE,
देन यू विल फाइंड दैट कि वहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में हो सकता। ये भी एलिफेटिक ही है, स्ट्रेट चेन वाली कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन्स आर द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज एलिफेटिक। एलिफेटिक का दो टाइप हमने बताया आपको, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें एक स्ट्रेट चेन वाले भी होते हैं और दूसरे ब्रांच चेन भी होते हैं, तो उनको हमने साइड चेन बोल के हटा दिया साइड से, ठीक है। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ओके सर C2 हाँ। बॉन्ड नहीं हो सकता क्या? C2 कंपाउंड नहीं हो सकता क्या? C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल बनेगा ना, लेकिन उसमें वैलेंसी जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट विल बी अनस्टेबल। उसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये जो बनाया ना हमने C2, ये वाला, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 चार ऐसे खड़े कर दिया, ऐसे बोल रहे ना आप? हाँ। हाँ, तो ऐसा करने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, राइट। दो के बीच में बॉन्ड्स कितने आ गए? 4। Such a compounds with a 4 shared pair of electrons is supposed to be unstable, ये वाला। इसका जब फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि इट विल बी फॉर्म, बनता तो बहुत कुछ है लेकिन उसका स्टेबल नेचर जो है वो बहुत कम होता है। जैसे N2 बना दिया, O2 बना दिया, तो ऐसे C2 भी बनना चाहिए था, राइट, है ना? हाँ, बनता है, बट अब उसको हाइड्रोकार्बन में आप ला नहीं सकते। यस, विल इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग देम अंडर द हेडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? नो। नो, बिकॉज उसकी चारों वैलेंसी जो है कार्बन ने कार्बन की सेटिस्फाई कर दिया है, तो हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में वो नहीं रह सकता, एक बात। दूसरी बात, सच टाइप ऑफ कंपाउंड एग्जिस्टेंस में तो होते हैं लेकिन उसका लाइफ जो है वो इतना कम होता है कि वो जल्दी से अलग हो सकते, दोनों के दोनों, ठीक है। मीन्स दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्लोज चेन ऑफ कार्बन आइटम्स विल बी देयर। अब क्लोज चेन करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? सपोज दिस वन, 3 लगेंगे तो सर? ये जोड़ दिया आपने तो कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना, तो अगर 3 पे आ गए ऐसे, अब जोड़ दिए। अब इसमें कितने हैं बॉन्ड, कितने कम है इसके? 2। इसमें कितने कम है? 2। इसके 2 हो गए और 2 बाकी है, ओके। तो अब ये हाइड्रोकार्बन हो गया, लेकिन ये एलिफेटिक में जा सकता? नो, दिस कैनॉट बी एलिफेटिक। This cannot be aliphatic because it has a closed chain of carbon atoms. If you go for the 4 carbon atoms, then देखिए अभी मैं आपके सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बताया, this is also cyclic compound in which there is a closed chain of carbon atoms. If you go for the 5, then बन जाएगा? Yes. Okay, so these are the 5 carbon atoms. यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे, जहां पे मैंने 2 सिंग निकाल के रखे हैं वो सारे हाइड्रोजन के लिए है। कार्बन का एंटेना फॉर हाइड्रोजन, ओके। वी गो फॉर द 6, देन in this way, यहां पे किसी भी टाइप का मैंने कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किया, कहीं पे बताया नहीं है, ठीक है।
So these are also saturated hydrocarbon, but they are cyclic. These are saturated hydro. You can't say कि these are the aliphatic. ये aliphatic हो ही नहीं सकते, ठीक है. तो अब इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, थोड़े हाइड्रोजन कम कर देते हैं. जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो आपको बताना चाहिए कि वहां पे एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट. चलते हैं. किसी दो कार्बन के बीच में मेरे को डबल बॉन्ड बताना है. ओके. अब इसके बॉन्ड कितने हो गए? दिस कार्बन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके. हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 + 1 3, so only one left. What about this? What about this carbon number 3? One bond left. One is left. Okay. What about this? 2. So this is what type? Unsaturated. Unsaturated. इसमें डबल बॉन्ड है तो इसके नाम में आखिरी में क्या दिखना चाहिए? ENE. ENE दिखना चाहिए. प्रीवियस वाला नहीं बताऊंगा आज. ओके. We go for the 4 carbon atoms. Again 3 bonds, single hydrogen, 3 bonds, single hydrogen. यहाँ पे Double hydrogen. दो. Yeah. So this one is also unsaturated. इसके नाम में भी ENE होना चाहिए. Is it possible to draw a carbon-carbon triple bond in between these any two carbon atoms? Yes. 1 2 3. Okay. इसके बॉन्ड कितने हो गए? 4. इसके कितने हो गए? 4. What about this? अब यहाँ पे ये कैरेक्टराइजेशन है तो इसके नाम में आखिरी YNE होना चाहिए. लेकिन इसी में हमने एक दूसरा भी टाइप देखा है. क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ये वो होते हैं दोज हैविंग अ क्लोज चेन ऑफ 6 कार्बन आइटम्स. पहली कंडीशन. कितने? 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. And there should be a presence of alternate double bond. मतलब यदि मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दूं तो उसके बाद में सिंगल आना चाहिए, फिर डबल आना चाहिए, फिर सिंगल, फिर डबल. Okay. So this is a characteristic that having a close ring of at least 6 carbon atoms. One thing. Second thing, they should have the alternate double bond. Alternate double bond should be there. Now go to the hydrogen. कितना चाहिए इसके लिए? This is your first carbon. Suppose first, second, third, fourth, fifth and sixth. So carbon number 1 पे कितने हाइड्रोजन लगा सकता हूँ मैं? 1. Only 1, right? What about the carbon number 2? 1. 1. What about 3? 1. What about 4? Again 1, 5. Again 1, 6. Again 1. Do you know this compound? Benzene. Benzene. This one is the basic aromatic compound. बड़ा अच्छा है. ऐसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ किया कभी? नहीं सर. ओके. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अभी नहीं हुआ है हमारा, हम ऐसे लिखना चाहिए हमको, ठीक है. या फिर यू कैन हैव दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड ऑल हाइड्रोजन्स आर शोन, राइट. बट इफ यू गो फॉर दिस कंपाउंड्स हियर 1 2 3 4. Okay, 6 carbon atoms are there, but none of them have the alternate system of double bond. So this is a cyclic hydrocarbon. This one is aromatic. Okay. So नाम में कुछ अलग सा लग रहा है. Do you know this word? Yes. Yes. What is the meaning? Fragrance. हाँ. Is it a fragrance? Yes. Okay. Aroma.
these compounds have peculiar characteristic of aroma, means fragrance, and that's why they are the aromatic. Okay, do you know the naphthalene balls? Yes. Okay, which color? White color. Okay. See here. Alternate double bond is there. Yes. Okay, go to this carbon. Suppose this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 carbon atoms are there. Right? This one is your naphthalene. अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है आपका कार्बन नंबर 2 and 7. Carbon number 2 and 7 carries double bond. So Yes. next double bond should be in between 3 and 4. Again, next double bond should be there in between 5 and 6. 5 and 6, right? So this is again a conjugated or alternate system of double bond. So this one is a aromatic compound. Naphthalene. So do you know the fragrance of this one? आंखें मतलब आंखों पे पट्टी बांध दी आपके और आपके नाक के पास इसको लेके आ गए तो कैन यू आइडेंटिफाई? Yes. Yes, means it has a characteristic fragrance जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. If I have the 3 such close rings, see a 1, एक हो गया, दूसरा यहीं पे ड्रॉ करते हैं, तीसरा इधर से इधर से. अच्छा ये मिटा दो मैं नैफ्थलीन. Yes. Okay. Now I have to start with the counting. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है. Now I have to place a double bond between first and last. So next double bond should be in between 12 and 13. 2 and 11, right? Next double bond should be 13 and 12. यहाँ पे तो क्लोज रिंग हो गया आपका, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी आ गया. चलते हैं कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड दे दूं. Yes. Okay. Next double bond should be there. 9 and 10. Okay. Is there any need at carbon number 4? No. No, because 2, 3, 4 बॉन्ड पूरा हो गया है. 9 पे चलते हैं. 9 की पोजीशन क्या है? 1, 2, 3 और 1, 4. No need. So you go for 5, 6 and then 7, 8. Now remaining valencies are there. यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने. So how many hydrogen should be there? So is there any एक minute. Is there any possibility of existence of hydrogen on carbon number 2? No. No. Carbon number 11? No. No. यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रोजन की, राइट? यहाँ पे 4 and 8, 4 and 9 पे No. नो. मतलब यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक. 4 हाइड्रोजन कम हो गया. मतलब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? In all there are 14 carbon atoms, right? Yes. How many carbon atoms are there? 14. So how many hydrogen should be there? 10. 4 ऐसी जगह है 2, 11, 4, 9 जहां पे हाइड्रोजन नहीं है. आप इसको जितना बड़ा करते जाएंगे ना उतना हाइड्रोजन कम होता जाएगा. मतलब अनसैचुरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. अनसैचुरेशन बढ़ता जाएगा एंड इन दैट केस सच ए कंपाउंड मे नॉट बी स्टेबल. कुछ लोग बोलते कि वो नेल पेंट का थिनर होता है ना, Yes. नेल पेंट का थिनर, उसका ढक्कन खोल के रख दिया तो क्या होगा? वो खाली हो जाएगा. 2-3 दिन बाद में वो गायब हो जाएगा, बराबर? Yes. कहाँ गया होगा वो? In atmosphere. In air. एटमोस्फियर, इन एयर. ओके.
तो गया मतलब क्या हुआ, उसका क्या हो गया होगा आगे? वो वोलाटाइल था तो फिर वो ओके, वेपर तो एक नहीं बात, हुआ, लेकिन ठीक है ना, वोलाटाइल हो गया, यहां तक ठीक है, आपका अजम्पशन बिल्कुल सही है। मैं ऐसा बोलूं कि इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो गया और उसके कंपोनेंट्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, तो उसका डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब वो कंपाउंड का ब्रेकिंग हो गया है। मॉलिक्यूल जो है काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो रहा था, ये छोटा हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का कब होगा वेपराइजेशन? when heat is given to it, एट 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 compulsory. degree Celsius. Yes, at 100 degree Celsius it get vaporized or boiling process will start, right? Yes. हाँ, यदि आपने प्रेशर में वगैरह चेंजेस किया तो दैट में बॉयल एट 90 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, वो हो सकता, वो हमको अभी स्टडी नहीं करना है फिलहाल। बट दिस कंपाउंड इज अ वोलाटाइल कंपाउंड, राइट? इट गेट Yes. डिकम्पोज और इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जाना पसंद है, बिकॉज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैव मोर स्टेबिलिटी। वाटर जो है काफी छोटा मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, जबकि ये कंपाउंड काफी बड़ा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो दिस विल नॉट बी अ स्टेबल वन। इनकी स्टेबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये जितना बढ़ते जाएगा, अनसैचुरेशन जितना बढ़ेगा उतना वो अनस्टेबल होते जाएगा, मींस आइदर इट विल कंबाइन विद सम अदर elements to form new compounds. Okay, तो aromatic के लिए हमने एक कंडीशन बताया आपको कि there should be a close ring of at least 6 carbon atoms, right? And second condition बताया कि there should be a presence of alternate double bond. फिर भी aromaticity जो है, किसी कंपाउंड को aromatic बोलना है तो कैसे बोला जाता है, तो उसके लिए होता है किसी कंपाउंड को एरोमेटिक है या नहीं है ये ढूंढने के लिए हमने एक रूल बना दिया, हकेल्स 4n+2 पाई रूल। यन क्या है? अब जब आपके ये बीच में पाई वर्ड आ गया, अब ये पाई हमको देखना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया था, ये वाला, दिस इज सिंगल बॉन्ड। जहां सिंगल बॉन्ड होता है उसको हमने एक नाम देना है, Saturated. नो, सिग्मा बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड आएगा ना, उसमें से एक जो है वो सिग्मा होगा और दूसरा जो है वो पाई होगा। wherever there is a double bond, wherever, कहीं पर भी हो, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, कहीं पर भी हो जाए, ऑक्सीजन में जाओगे तो भी, नाइट्रोजन में जाएंगे तो भी, CO2 में जाते हैं तो भी, there will be a double bond and it consists of one sigma and one pi bond. This one is a sigma bond. Greek alphabets are used for the denotation. Okay, now here it is. This one is One pi, this sigma, one is pi. 2 pi. 2 pi. So अभी हमने जो डबल बॉन्ड देखे हैं वो बेंजीन में है ना, जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक सिग्मा था और एक पाई बॉन्ड था, ठीक है। अब पाई बॉन्ड हो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, एक बॉन्ड मतलब सिंगल, मतलब एक, वन बॉन्ड इज इक्वल टू, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो चाहे पाई हो चाहे सिग्मा हो। अभी 4n+2 पाई रूल, या फिर इसको हम और एक नाम दे देते हैं 4n+2 अब ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2। कौन से टाइप के? कौन से टाइप के? पाई के। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड थे? 3। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। ठीक है, बेंजीन को हमने एरोमेटिक बोल दिया है पहले ही, अब हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं बाय दिस रूल। यस, हाउ मेनी क्लोज रिंग्स आर देयर? 1, टोटल
6 pi electron means 3 pi bonds. 3 pi bonds. You got this one? Yes. ओके, सो एरोमेटिसिटी का ये एक खास कंडीशन है. एक कंडीशन तो मैंने बताया कि देयर शुड बी क्लोज रिंग ऑफ 6 कार्बन आइटम्स. दूसरा कंडीशन बताया देयर शुड बी अल्टरनेट पाई बॉन्ड. तीसरा कंडीशन मैंने बताया हकेल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई रूल. 4n+2 पाई रूल. लेकिन इसके बीच में वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता नहीं इलेक्ट्रॉन. वो सिर्फ डायरेक्ट प्रूव कर देते कि इलेक्ट्रॉन इतने आ गए. नाउ मैं अभी इसके बाद में हमने वो जो नैफ्थेलिन किए थे, राइट? Yes. नैफ्थेलिन किए थे ना हमने. नैफ्थेलिन में 2 क्लोज रिंग थी ऐसी. ओके, these are the 2 close rings. How many pi bonds are there? 5. 5. 5 pi bonds, 10 pi electrons should be there by this rule. How many close rings are there? 2. 4n+2 कितना आएगा? 10. 10. यस. 1 2 3 और 2 5 बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक हो गया. ये एरोमेटिक कब होगा? जब ये रूल भी फॉलो होगा. अब मैं एक ऐसी कंपाउंड निकालता हूं, वो साइक्लिक तो है, पाई बॉन्ड भी है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है. देखते हैं. All these are the compounds containing close rings of carbon atoms only. Means these are called as homocyclic compounds, in which their close ring is made up of only carbon atoms. None other than carbon is there in a close ring. If you go for these compounds here, carbon, carbon, कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दिया सिर्फ. ठीक है, रिमेनिंग जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं. Is it a cyclic compound? Yes, because there is a close ring. Is it a homocyclic? Yes, because there is a only carbon atom in a close ring. Is it a aromatic? No. No, this will not be aromatic because this rule is not followed by this compound. So this compound will not be aromatic one. Will it be aromatic? No. No, बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्लोज रिंग 1 दिख रहा है, पाई बॉन्ड इसमें 3 होने चाहिए थे कम से कम, नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा. ठीक है. Yes. ठीक है. Is it a cyclic? Yes. Okay, this one is a cyclic compound, but it will not be aromatic क्योंकि इसमें मैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड अभी बताया नहीं है, और बता भी दिया सपोज. हाँ, तो will it be aromatic? No. पार्शियली हो सकता, पार्शियली हो सकता. No. How many pi bonds are there? 4. So rule follow नहीं हो रहा है, बराबर. Yes. इसमें हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है. इसके अंदर 10 pi electrons are there. How many close rings are there? 1. Close ring, only one. So if one close ring is there, then there should be 3 pi bonds, right? Means 6 pi electrons should be there. जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो दोनों कंडीशन से फॉलो नहीं कर रहा है, so it would not be, it will not be a
it will not be aromatic compound. ये नहीं हो सकता aromatic. One thing. Second thing, हमने एकदम beginning में बताया था कि the compounds, cyclic compounds containing close ring of at least 6 carbon atoms. Right? Yes. Yes. How many carbon atoms are there? 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 3, 10. Yes. So this will not be aromatic. किसी भी एंगल से aromatic नहीं हो सकता. ठीक है? Partially भी नहीं हो सकता. So you got the condition for aromaticity. Yes. इसी से रिलेटेड एक चीज, अभी मतलब टाइम है तो हमको आगे तो जाना नहीं है, बट काम कर लेते हैं. Have you heard this one? Carcinogenicity. No, okay. These aromatic compounds are carcinogenic. They are carcinogenic means these are cancer producing compounds. इसकी वजह से कैंसरस सेल का ग्रोथ हो सकता. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन से कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी डेंजरस. यू गॉट दिस वन. कार्सिनोजेनिक मीन्स दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऑल्सो. डेंजरस होते हैं. अब ये बेंजीन वगैरह उतने हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन इससे जब हाइयर कंपाउंड्स हमने बनाए थे, एंथ्रासीन वगैरह बनाए थे ना, दे आर वेरी डेंजरस. दे आर कार्सिनोजेनिक. सेल म्यूटेशन वर्ड सुना है आपने? Yes. ओके. वहां पे जाके काम करते ये कंपाउंड्स. बायोलॉजिकली दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड. हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को डिग्रेड कर सकता है, बट एरोमेटिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन नहीं हो सकता इन कंपाउंड्स का, एंड दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे हम, ट्रेसेस. ट्रेसेस में रह जाते हैं बॉडी में, एंड दे कॉजेस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स that results into formation of tumors or cancerous growth. Cancerous cells are formed, and these are carcinogenic substances. Aromatic compounds are carcinogenic, means they are very harmful for us. Okay, so today we'll take a pause now. Yes, sir. Okay, तो रुकते हैं यहाँ पे.